compounds which can dissolve in aqueous NaOH. क्वेश्चन पहले जेई 2010-11 में भी कुछ था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. Number of compounds out of following which is given which can dissolve in NaOH. The concept is simple सा है. Strong acid can displace weaker acid from its salt, है ना. So for example, if you see this reaction, let's say HCl when treated with NaOH or KOH का aqueous solution, it can convert into H2O plus NaCl, है ना. Obviously, let's say if HCl is relatively stronger acid and H2O is, let's say, relatively weaker acid, then equilibrium constant of this reaction will be more than 1. A stronger acid can lose H plus easily in comparison to that of weaker acid, and reaction can shift in forward direction. So any compound, any acid which is stronger acid than water can react with NaOH and can dissolve in NaOH. So for example, if you have, let's say, alcohol, they are relatively stronger or weaker acid in comparison to water. Except for methyl. Let's say methyl alcohol. In general, if you see, alcohols are relatively weaker acid in comparison to water, and thus alcohols can't dissolve in NaOH or KOH. Similarly, let's say we have this type of terminal alkynes. They are found to be relatively less acidic in comparison to water and thus can't dissolve in NaOH. But if, let's say, we have phenol, let's say if we have carboxylic acid, if we have this type, let's say benzene sulfonic acid, and if you remember in amines chapter, let's say we have this type of question, this type of example, है ना. ये कौन से टेस्ट में यूज हो रहा था कि this compound can react with NaOH or can dissolve in NaOH? कुछ हिंसवर्ग टेस्ट है ना, तो कुछ हिंसवर्ग reagent which is benzene sulfonyl chloride when treated with 1 degree amine, तो कुछ ऐसा compound बन जाता which can dissolve with NaOH or KOH, है ना, ऐसा कुछ होता था. So जैसा this compound or this compound can dissolve with NaOH. So in general, any compound which is more acidic than water, है ना, more acidic than water can dissolve in NaOH. Otherwise, compounds remain insoluble with NaOH. इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो दूसरा टाइप के क्वेश्चंस होते थे, ये कुछ ऐसा, लेट्स से सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, है ना, लेट्स से NaHCO3 टेस्ट. बुकलेट में भी ढेर सारे क्वेश्चंस थे इसके बेस पे. बाइकार्बोनेट टेस्ट, इवन जो तुम लोग के मेजर टेस्ट हो रहे थे वहां सब भी क्वेश्चंस थे ना, बाइकार्बोनेट टेस्ट. सो out of following, let's say, which can give bicarbonate test, maybe more than one choice, it may be integer type questions also. So इसमें भी acid should be stronger acid than H2CO3. As per H2CO3 is concerned, इसका जो pKa1 है ना, pKa1 of H2CO3 is approximately 6.8, है ना, approximately. So any acid which have less pKa in comparison to 6.8 can displace CO2 from sodium bicarbonate. So ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, बाइकार्बोनेट टेस्ट? Among different organic compound, you can assume, let's say, carboxylic acids are found to be relatively stronger acid in comparison to, let's say, H2CO3, and thus they can displace CO2 from NaHCO3. Apart from this,
ये सब बच्चों ने पढ़ा होता है कि इट इज लेट्स से डाई नाइट्रो और लेट्स से इट मे बी ट्राई नाइट्रो, है ना. सो डाई नाइट्रो एंड ट्राई नाइट्रो फिनोल्स are also found to be stronger acid in comparison to H2CO3. The common name of this acid is picric acid. Achha, apart from this, if you see these type of phenols also, it is bromine, bromine and bromine here. Let's say tribromo derivative of phenol, है ना. It can also give bicarbonate test. This is another common example जो सब बच्चों ने पढ़ा होना चाहिए. It is this type of squaric acid, है ना. It is also stronger dibasic acid, can give bicarbonate test. Similar to this squaric acid, if we have double bond, double bond, double bond, and let's say OH and OH, it can also give bicarbonate test, है ना. So apart from this, obviously any mineral acid including HCl, including H2SO4, including let's say benzene, sulfonic acid, all these compounds can give bicarbonate test. They can displace CO2 from aqueous solution of bicarbonate, sodium bicarbonate. So again the concept simple सा है, stronger acid can displace weaker acid from its salt. So let's say if you have H2O and let's say we have this compound out of 1 and 2, which compound is found to be more acidic? दोनों का जो acidic strength है वो nearly same type का ही है, and H2O is found to be slightly more acidic than that of this compound. which although इसका conjugate base aromatic हो जाएगा, but negative charge remain on carbon only, है ना. Here we have negative charge on more electronegative oxygen, so H2O is found to be more acidic than that of this compound. Now I am repeating again, although इसका conjugate base aromatic बन जाएगा, है ना. Even in acidic strength related to benzoic acid, somewhere you have seen the meaning of ortho effect, hydrogen bonding or intramolecular hydrogen bonding. With the help of hydrogen bonding, acidic strength may increase or decrease depending, you know. Your conjugate base is better stabilized or acid is better stabilized with the help of hydrogen bonding. Meanwhile, इसे बच्चों को अपने GOC के नोट्स में कुछ डाउट्स हैं जो हम वो डिस्कस कर सकते हैं शायद. सर हाँ सर, like suppose क्वेश्चन में बोला है compare the acidic strength of P nitrophenol and P methoxybenzoic acid. तो मतलब उसमें confusion हो रहा है. Yes sir, it is para nitrophenol. Let's say ये कुछ nitrophenol ये कुछ इस टाइप का and P methoxybenzoic acid. P methoxybenzoic acid. In general if you see phenols है ना, phenols का जो Ka value है, phenols का Ka value is found to be in the range of 10 to the power minus 9 if it is only phenol, है ना. Obviously अगर पैरा पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, certainly it will make this phenol more acidic, है ना.
relatively more acidic, जैसा this can be in the range of 10 to the power -8 -7 also, है ना. But certainly ये वाला जो कंपाउंड है वो H2CO3 से कम ही एसिडिक है ना. ये बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता जैसे, है ना. Now if you see in this case benzoic acid का pKa is something 4 point something, है ना. तो मान लो अगर इसमें थोड़ा बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच भी है तो ये शायद इंस्टेड ऑफ 4 point something 5 point something हो जाए, 6 point something हो जाए. बट कंफर्मली दिस शुड बी मोर एसिडिक देन दिस, है ना. मैं बोल रहा हूँ कि ऑल्दो एक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ अटैच है, ऑल्दो इट इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ अटैच है, बट इट डज नॉट मीन शायद वो उसको बहुत कम एसिडिक बना देगा, है ना. अब इसको उसका एसिडिक से डिक्रीज तो करेगा बट उतना डिक्रीज नहीं करेगा, और ऐसा ये बहुत ज्यादा इंक्रीज भी नहीं करेगा शायद, है ना. मतलब दोनों का वैल्यूज. So picric acid is a lot more acidic. बट बोलो पिक्रिक एसिड फिर अलग ही एग्जांपल है. अलग ही एग्जांपल मींस उसमें अगर और दो ऑर्थो पे NO2 ग्रुप अटैच है, नाउ इट इज 3 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर अटैच, और वो फिर बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है ना. जैसे उसका पीके वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ जाता है ना. खाली 2 NO2 अटैच हो तो अब वही मैं बोल रहा हूं, प्रिसाइजली ना बोल नहीं सकते कि अगर मैं सिर्फ यहाँ NO2 ऐड कर दूं तो ये इससे स्ट्रॉन्गर होगा या नहीं होगा, है ना. तो ऐसा गंदगी ना बचाओगे. मतलब फिर तो दोनों का वैल्यू चेक कर लो गूगल पे, है ना. K वैल्यूज, once you know their K values then we can explain, है ना. कोई इशू नहीं है फिर, है ना. ओके. बट मेरे हिसाब से अगर सिर्फ एक NO2 ग्रुप अटैच है तो दिस एसिड कैन बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस, है ना. बाकी दोनों का वैल्यूज तुम लोग चेक कर सकते हो, पीके वैल्यूज, है ना. हाँ, किसी और बच्चे को डाउट है अपने कुछ नोट्स में ऐसा? ये थाने वाले मेरे अच्छे दोस्त थे, ये कुछ पूछ रहे थे शायद कल. वो आज आया नहीं. ऐसे वो आज आया ही नहीं. अगर बेंजीन में NL डाइमेथिल है और बेंजीन में लेट्स से ये कुछ ऐसा NN डाइमिथाइल है, हाँ, और उसके दोनों साइड आयु वाली CH3, ये कुछ ऐसा मिथाइल मिथाइल, हाँ. और दूसरे कंपाउंड में एक ही मिथाइल है. दूसरे कंपाउंड में बस एक ही मिथाइल है, ऐसा N मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल, ऐसा है ना. तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कंफर्मली दिस इज फाउंड टू बी मोर बेसिक देन दिस. फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक है सेकंड वाले से. बट उसमें कंफ्यूजन क्या है हियर? एक्सेप्शन लिखे हैं. बट इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. हियर वी हैव मोर SIR, है ना, steric inhibition of resonance, and this lone pair of electron can't delocalize into benzene ring effectively. In this case steric inhibition कम होता, so यह lone pair of electron थोड़ा बहुत delocalize कर जाता. बट इसमें से परेशानी क्यों हो रहा है बताओ? हमको एक्सेप्शन लिख के दिया कि नीचे वाला ज्यादा रहेगा बेसिक. नीचे वाला ज्यादा बेसिक है, ऐसा है? यस. ये होना तो नहीं चाहिए. एक्सेप्शन लिख के दिया. अच्छा लिख के दिया तो मतलब पहले बताता ना कि वो एक्सेप्शन है, उसको एक्सप्लेन करके दिखाओ ना. ऐसा ऐसा गंदा ना बचाओ ना. अच्छा जी, मतलब हो सकता है अगर पार्टिकुलरली ऐसा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल लिखाया है कि यार ये इससे ज्यादा बेसिक है, हो सकता है, बट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए. अगर इसमें देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, वो एक्सेप्शन भी हम लोग एक्सप्लेन तो कर लेंगे. एक SIP वाला टर्म होता है ना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, है ना. तो अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अराउंड तो H+ आसानी से आ नहीं पाएगा, है ना. अगर उसको लेस बेसिक एक्सप्लेन करना हो तो, है ना. बट फिर भी एक बार ना वैल्यू चेक कर लेना यार. मुझे लग रहा है कि यही वाला ज्यादा बेसिक होना चाहिए, फर्स्ट वाला, है ना. आपको बॉन्ड एंगल से बताया. बॉन्ड एंगल से बताया था. क्या बताया था? दोनों के बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाता, तो H+ आ नहीं पाएगा.
हाँ जब तक जो आप बोले हाँ मतलब वही SIP टाइप ना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब H+ नहीं आ पाएगा ऐसा। हाँ वही मतलब, तो ये इससे ज्यादा बेसिक पहले पता होना चाहिए ना। तो मतलब एक्सेप्शन लिखा है तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो अब देखो जब तुमको पता ही है फिर ना पूछो, है ना। उसमें तुम्हें डाउट था या नहीं था? सर वो बुकलेट में आंसर्स मैच नहीं हो रहे, एक्सेप्शन। GOC की बुकलेट के इन जनरल जो आंसर्स हैं इन जनरल वो सही है, मतलब एक्सेप्ट 5% क्वेश्चन में शायद आंसर मैच ना कर रहा हो। मींस उस एक्सरसाइज में अगर 20 क्वेश्चंस है, मे बी सपोज एक क्वेश्चन का आंसर मैच ना कर रहा हो यार, मतलब बाकी तो सही से क्वेश्चंस है ना, मतलब बाकी सेंटर्स भी करेक्टेड हैं कुछ बच्चे। तो बुकलेट के मैक्सिमम GOC के आंसर की मैच हो रहा होगा ना। ये बाकी सेंटर्स को परेशानी नहीं है। अमाइंस में था, अमाइंस। अच्छा अमाइंस की बुकलेट के, इसमें था ये। हाँ तो उसमें भी एज सच शायद कुछ बच्चों ने अमाइंस की बुकलेट भी कर ली होगी यार, मतलब ऐसे ज्यादा परेशानी नहीं है उस बुकलेट में भी। अच्छा कुछ यहाँ शैतान बच्चे भी करेक्टेड हैं जो ये बोल रहे हैं कि अंधेरी में कि एल्डिहाइड कीटोन तक इन्होंने नहीं किया बुकलेट अभी तक, है ना। तो है मतलब कुछ बच्चे यहाँ पहुंचे नहीं है वहां तक, है ना। बेटी बेटा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। मीनवाइल कुछ और डाउट्स डिस्कस भी होंगे तुम्हारे, तब डिस्कस कर लेना अमाइंस का बुकलेट, है ना। ठीक है, तुम्हें लगता है हम लोग को क्लास का फ्लो थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए? सर हाँ बोलो सर, एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ और गैसियस या नॉन एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ पर कैसे कमेंट करते हैं? वो से तुम थोड़ा सिखाया होगा जब टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे। जैसा इन जनरल इफ इट इज लेट्स से RNH2 which is 1 degree amine, if it is let's say RNHR let's say 2 degree amine, and let's say if it is 3 degree amine, so in a gaseous phase or non मतलब aprotic solvent it is 3 degree amine more basic than 2 degree amine more basic than 1 degree amine. It is in gaseous phase or in aprotic solvent, for example let's say CCl4, है ना, or in benzene. तो ये एक्सप्लेन करना रिलेटिवली इजी है। मोर इंडक्टिव इफेक्ट, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मोर बेसिक लेट्स से 3 will be more basic than 2, 2 will be more basic than 1, है ना। बट इन प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यहाँ इसको NH3+ बना के हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। पर मॉलिक्यूल इट कैन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, per molecule its conjugate acid can form 2 hydrogen bond, per molecule its conjugate acid can form only 1 hydrogen bond, and in combined in protic solvent 2 degree amine become most basic, है ना। अगर 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री भी हो सकता था, 3 डिग्री भी हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन एल्काइल ग्रुप R। ये ऐसा तो नोट्स में होगा देखा फिर डिटेल में कि अगर R मिथाइल ग्रुप है तो इट कैन बी लेट्स से 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, R अगर इथाइल ग्रुप है इट विल बी 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, है ना। किसी बच्चे का डाउट था, कहां से था? सर दादर। अरे तुम लोगों ने लिखाया और सर अगर हाँ सर ये लिखा था सर, अगर 3 R में से सपोज कोई एक ग्रुप फिनाइल हो तो फिर अगर एक ग्रुप फिनाइल होता है तो इट इज प्रोटिक, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना। ओके सर, चाहे प्रोटिक सॉल्वेंट हो चाहे गैसियस हो, उसमें मैटर नहीं करेगा, है ना। ओके सर, N dimethyl benzene is more basic than N methyl benzene, aniline, and then more basic than aniline, है ना। हाँ तो हम लोग आइसोमर, है ना, आइसोमर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं ना। तो कुछ क्वेश्चन हम बड़े आसान से करेंगे, मतलब कुछ 2-3 क्वेश्चन हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर के करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हम लोग स्टीरियो आइसोमर के करेंगे, कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन करेंगे। आई होप अनफॉर्चुनेटली उतना ही टाइम हम लोग के पास है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटिवली इजी है,
find out total number of structural isomer. Find out total number of structural isomer having molecular formula of C7H16. Find out total number of structural isomer having molecular formula C7H16. आई होप तुम लोग जल्दी से कर भी सकते हो, जल्दी से करना भी चाहिए. स्ट्रक्चरली काउंट करना है तो शायद लाइफ आसान है. उसमें कुछ 9 आंसर है उसका. 9 it is relatively easy means first let's say we can say it is normal heptane, then you can separate one methyl group out of this. It may be 2 methyl or let's say it may be 3 methyl. If you separate 2 methyl group, both methyl group can be present on 2,2, both methyl group can be present at 3,3. Let's say both methyl can be 2,3 and let's say both methyl may be at 2,4. Apart from let's say 2 methyl, you can separate 1 ethyl also. And let's say you can separate 3 methyl also. तो शायद कुछ टोटल ऐसे 9 structural isomers are possible है ना. As per JEE syllabus is concerned, it is not related with tough questions, but आसान क्वेश्चन शायद उस जेईई एग्जाम वाले टाइम पे भी मुश्किल से हो जाते हैं. ऐसे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ structural isomer. Find out total number of structural isomer containing benzene ring. And having molecular formula of C8H10O. Find out total number of structural isomer possible with benzene ring and having molecular formula of C8H10O.
तो ये क्वेश्चन शायद इंटीजर टाइप नहीं बनेगा, आंसर 10 से ज्यादा आएगा। हाँ मतलब कुछ कलाकारी की जाए तो केमिस्ट्री में इंटीजर टाइप बना देते हैं, मतलब ऐसा डिवाइड बाई 2, ऑड नंबर है तो +1 डिवाइड बाई 2। सर 14 है। 14 आंसर नहीं है, तो आंसर 14 से ज्यादा है ना। सर हाँ बोलो, आंसर बोलो। 15। हाँ 15 14 से तो ज्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली 15 से भी ज्यादा है आंसर, है ना। अब कोई बच्चा 16 ना बोलना है ना। ये अच्छे बच्चे, आंसर कुछ 19 है। जैसा लेट्स से फर्स्ट वी कैन फॉर्म सम ईथर्स एंड देन अल्कोहल्स, है ना। इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है इट इज 4 एंड कंप्लीटेड विद बेंजीन रिंग ओनली। सो जैसा ईथर में बी ऑफ दिस टाइप, इट इज CH2CH3। this ether may be CH2OCH3. Similarly, another combination of ether, this ether may be OCH3 and CH3 attached at ortho, meta and para, है ना। लेट्स सर ईथर के लिए हम लोग के पास 5 कॉम्बिनेशंस हैं। सेम लेट्स से वी सी अल्कोहल, दिस मे बी वन ऑफ द अल्कोहल and alcohol may be of this type also. Let's say 1 degree alcohol and 2 degree alcohol, and another alcohol will be CH2OH and CH3 at ortho, meta and para. तो इसके लिए 3, इसके लिए 1, इसके लिए 1, तो ये 10 तो अभी तक अल्कोहल एंड ईथर्स ही हो गए। अभी फिनोल्स भी है ना। फिनोल may be this OH and ethyl at ortho, meta and para. So there is another 3, and phenol में it may be OH and let's say 2 different methyl, है ना। इस टाइप ऑफ कंपाउंड के लिए कितने कॉम्बिनेशंस होते थे? ऐसा 6, 6 में 2 ऑर्थो, 3 meta and 1 para, है ना, with respect to these 2 methyl. So if we count total, it comes out to be 19.
Next question. Find out total number of isomers including stereo. Find out total number of isomers including stereoisomers. Including stereoisomers with at least one cyclic ring. With at least one cyclic ring and having molecular formula. Let's say A option is C5H10 and B is, let's say, C4H6. फर्स्ट वाला रिलेटिवली इजी सा लग रहा है. कितना है उसका आंसर? 6. 6 नहीं है, 7. इससे पता चल रहा है कि इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 1 है. लेट्स से इट मे बी वन ऑफ द कंपाउंड, इट मे बी लेट्स से अनदर वन, इट मे बी लेट्स से इथाइल ग्रुप अटैच्ड here. And similarly it may be, let's say, 2-methyl on same carbon, it may be 2-methyl on different carbon. Now you see the last one, it consists 2 chiral carbon and symmetry, है ना? So total 1 1 1 1 and let's say it will be 3, है ना? Its cis isomer will be optically inactive meso and trans will be having pair of enantiomers. So total, let's say, 7. Out of 7, how many will be optically active? Out of 7, 2 will be optically active, है ना? इस 3 में से एक meso है, 2 optically active है. Let's say second का आंसर ये दोनों क्वेश्चन आईआईटी जेईई के हैं, तो तुम लोगों से क्लास में किया होगा, तो जल्दी से जवाब देना चाहिए तुम लोगों को. हाँ 5 है आंसर. जैसा मतलब काउंटिंग करने में गड़बड़ नहीं होनी है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहले फाइंड आउट कर लो, है ना. फॉर एग्जांपल इफ यू सी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज 2, तो 2 में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता था? केस 1 में भी इट इज साइक्लिक एंड पाई बॉन्ड, है ना. और केस 2 में भी 2 साइक्लिक, है ना. दोनों में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 2 है और एटलीस्ट इट शुड कंसिस्ट 1 साइक्लिक रिंग वाला केस, है ना. तो यू सी साइक्लिक इट विल बी 4 एंड पाई बॉन्ड. इट मे बी लेट्स से साइक्लिक
and pi bond. It is cyclic and pi bond and cyclic and pi bond, है ना? तो केस 1 के लिए ही 4 बन जाते और केस 2 के लिए एक और लेट्स से 2 साइक्लिक रिंग है ना, बाइसाइक्लो कंपाउंड. टोटल लेट्स से इट विल बी 5. ऐसे फॉर्चुनेटली इस वाले केस में कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर तो बना नहीं है ना, सो नन ऑफ देम विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स इट विल बी 5. दो क्वेश्चन समवेयर रिलेटेड टू टोटोमर्स आल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Find out maximum number of hydrogens. Find out maximum number of hydrogens which can be replaced by deuterium. When following compound treated with excess of D2O. When following compounds treated with excess of D2O. Let's say first one, if it is CH3CHO, it is relatively easy. The next one, let's say we have double bond O. Next one, if it is CH2 and heavier isotope tritium here and CH3. Next one, it may be CH3, CH, double bond CH and CH3. Next one, it may be so you have to just find out maximum number of hydrogens which can be replaced by deuterium when this compound treated with excess of D2O. वैसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिन्होंने पहले भी देखे होंगे. फर्स्ट का आंसर कितना है इसमें? 3. इट कंसिस्ट 3 अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन. सो 1 by 1 जहां भी कॉन्जुगेट बेस बन सकता था एनायन, वो एनायन अगर स्टेबल है लेट्स से ना, इट कैन लूज H+ आयन एंड देन फ्रॉम सॉल्यूशन इट विल टेक D+. सेकंड के लिए 4, इट हैज 4 अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन can be replaced by deuterium 1 by 1. इस वाले केस में 5, although tritium is also acidic, but carbon tritium bond will be stronger in comparison to let's say carbon deuterium bond. Next वाले केस में 7, let's say these three and this one, है ना?
जहां भी कॉन्जुगेट बेस बन सकता था नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज लेट्स से स्टेबलाइज था रेजोनेंस के थ्रू। नेक्स्ट वाले केस में 8 नेक्स्ट वाले केस में 8 हो जाता। लेट्स से these three, एक ये है ना। So ultimately to replaced by deuterium, वहां कार्ब एनायन बनना चाहिए थ्रू रेजोनेंस। जैसे कार्ब एनायन बनेगा फ्रॉम सॉल्यूशन वो D+ ले लेगा और लेट्स से H+ लूज कर सकता रहेगा, है ना। सर यहाँ पे क्यूमुलेटेड डायमंड सर ये 7 नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि जब इसमें रेजोनेंस करेंगे तो ये क्या बन जाता है, लेट्स से CH2- ये पाई बॉन्ड इधर आ गया। तो जब ये रेजोनेंस करता तो ये पाई बॉन्ड इधर पे ब्रेक होता था ना, तो इस कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, इसके जैसा ही कुछ हम लोग बोल सकते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग विच कैन गिव, out of following which can give color, with neutral FeCl3 aqua solution, which can give color with neutral FeCl3 aqueous solution। ये कुछ इस टाइप का, let's say if it is CH2OH, it may be of let's say this compound. Similarly it may be CH3CO, CH2CO, CH3. It may be let's say CH3CO, CH2 and OC2H5. It may be of let's say this type of compound, and similarly so out of following let's say how many can give color with neutral FeCl3 aqua solution। किसका टेस्ट किसका होता है FeCl3 कलर टेस्ट? Basically a test of enol। So if enol content is found to be in traces, तब वो टेस्ट नहीं होगा, है ना। तो unless until enol content traces में नहीं है या very low percentage, it can give color with FeCl3। तो ये फर्स्ट वाला कंपाउंड इनॉल कंटेंट 0 है, इनॉल ही नहीं हुआ ना, तो फर्स्ट वाला ये टेस्ट नहीं देने वाला है। सेकंड ये टेस्ट देगा, ऑब्वियसली इट इज फिनॉल के लिए टेस्ट। फिनॉल कंसिस्ट नियरली 100% इनॉल। ये भी देगा, इसमें कुछ 76.4% इनॉल कंटेंट है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुपलेट्स है ना इस वाले केस में। इस वाले केस में भी होता है, इट इज 8 पॉइंट समथिंग है उसमें परसेंटेज इनॉल कंटेंट। सो ऑल्दो इंटेंसिटी ऑफ कलर इज रिलेटिवली लो, बट हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं लेट्स, है ना। इस वाले केस में in this case percentage enol content is in traces, let's say it is mainly वो कीटो वाले फॉर्म में चला जाता, साइक्लोहेक्सेनोन। इस वाले केस में इसमें भी ये नियरली 100% इनॉल हो जाता ड्यू टू रिपल्सन इन कीटो फॉर्म, है ना, तो बेटर क्यों इनॉल बन जाता। इस वाले केस में ये इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट हो जाता एंड जो डबल बॉन्ड का रिपल्सन है वो डिक्रीज हो जाता है, मेनली इट एग्जिबिट इन कीटो फॉर्म, है ना।
So let's say 1, 2, 3, 4. Out of these compounds, 4 can give color with neutral FeCl3. सर फोर्थ वाला क्यों देता है उसमें OC2H5 का प्लस आर इफेक्ट नहीं करता? ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, सो इफ यू सी यहाँ जो इनॉल कंटेंट है वो यहाँ जो इनॉल कंटेंट है वो नियरली 76.4% है और यहाँ जो इनॉल कंटेंट है वो 8.5% के आसपास हो जाता है ना. तो I'm saying intensity of color will be poor in this case, but हम लोग की आंखें उसको देख पाती है ना उस कलर को, बट अगर वो ट्रेसेस में चला जाए ना इनॉल कंटेंट तब हम लोग भी कुछ कर नहीं पाते है ना. तो वैसे सबसे ब्राइट इंटेंस कलर तो दिखने वाला है फिनोल वाले एग्जांपल्स में, जहां परसेंटेज इनॉल कंटेंट इज फाउंड टू बी मच हायर. जैसे बेसिकली जो टोटोमर स्टार्ट हुआ है एज पर हिस्ट्री इज कंसर्न वो इसी कंपाउंड से स्टार्ट हुआ है ना, इथाइल एसीटो एसीटेट. एज पर प्रोजेक्शन इज कंसर्न, ये कुछ बच्चों ने शायद कुछ ऐसा पढ़ा रहेगा, लेट्स से गॉश इफेक्ट है ना. गॉश इफेक्ट मींस इफ यू सी दिस कंपाउंड CH2X CH2X है ना. अच्छा, जनरली एंटी कन्फर्मर इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन गॉश कन्फर्मर. But if you see these compounds CH2 fluorine and fluorine, basically the element of second period, it may be CH2OH and CH2OH, it may be let's say CH2 OMe and OMe, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है. It may be let's say CH2 let's say it is NH2 and NH2, it is same as CH2OH and fluorine, element of second period basically. It may be let's say CH2 and CH2, it is NR2 and NR2. Compound may be of this type, including H2O2, including N2H4, including H2S2. in सब cases में gauche form is found to be more stable, है ना, more stable in that of anti form. ये भी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन कर लेंगे, बट हाल फिलहाल तुम लोग याद रख लो ज्यादा बेटर है ना. ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो इनऑर्गेनिक में भी तुम लोगों ने देखा है ना. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए शायद ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का है. इट मे बी लेट्स से सपोज OH here. If you imagine a disk here between two oxygen, lone pair and lone pair of electron, this will be another hydrogen here ना, gauche form. ऐसे ना ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर बेसिकली ना H2O2 का. तो उसमें भी gauche form is found to be more stable in comparison to that of anti-conformer. जैसे इंस्टेड ऑफ फ्लोरीन ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखा, अगर एक क्लोरीन होता है ना तब उसमें एंटी कन्फर्मर इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ गॉश फॉर्म.
Next question. Find out total number of stereoisomers. ऐसा कुछ क्वेश्चंस किए होते हैं बहुत सारे लोग हैं ना. Find out total number of CH2Cl the CH2Cl CH2Cl में antiform is found to be more stable. उसमें Gauss effect नहीं है ना. तो mainly Gauss effect we have for element of second period of periodic table है ना. Find out total number of stereoisomers possible. Total number of stereoisomers possible for given structure, and out of them how many will be optically active. In the case of S2Cl2, do we observe Gauss effect? The S2Cl2 वाले केस में अनफॉर्चुनेटली Gauss effect टाइप सा है ना. जैसे ये तुम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है ये वाला है ना S2Cl2. अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जैसा ही है ना. ऐसा कुछ इनऑर्गेनिक में पढ़ा रहेगा तुम लोगों ने ना. ये भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जैसा ही स्ट्रक्चर उसका है ना. So will be optically active. Let's say ये कुछ ऐसा कुछ आसान वाला एग्जाम्पल. First one similar to this. The second one. You have to find out total number of stereoisomers possible for these compounds, and out of them how many will be optically active. फर्स्ट जो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सा लग रहा है, इट कंसिस्ट 3 स्टीरियोजेनिक और कायरल सेंटर, and there is no symmetry in this molecule, and thus it should be 8 total stereoisomers possible, and out of them all 8 will be optically active. Second, it consists 2 chiral carbon, but unfortunately it can't exhibit trans conformer है ना, ये ट्रांसफॉर्म, ये सिस ही होने वाला है हमेशा है ना. यहाँ से ज्वाइन है तो ट्रांस नहीं हो सकता है ना. सो ओनली 2, ये और इसका मिरर इमेज बेसिकली है ना. 2 and
obviously pair of enantiomer है, so it will be optically active. ये थर्ड का आंसर कितना है? 9. ये 9 नहीं है, थर्ड सर 7 7 भी नहीं है. सर 6 है क्या? So that 6 है आंसर. Yes, sir, if you see, this may be one of the stereogenic center. यहाँ से भी it can exhibit cis and trans and from here also, ना? So in this case, let's say R and S configuration can be possible. Around this, let's say Z and E can be possible, and यहाँ से भी let's say R and S can be possible. So जो possible number of combinations है, it may be, let's say this can be R, it can be Z and R. Similarly, it may be S, Z and S. Total, I hope ऐसे 8 configurations possible है सब मिला के ना, for 3 stereogenic center. So this 8 may be, it is R, E, R, and it is S, E, S. It may be R, Z, S, and it may be S, Z, R, and another one, it is R, E, S, and S, E, R. टोटल मिला के ऐसे 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. यू टू जस्ट चेक किसमें ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई आइडेंटिकल तो नहीं है, सिंस it has symmetry, है ना? If there is no symmetry, confirmly these 8 will be answer. So what is the relation between these two compounds? They will be pair of enantiomer, so we can count 2 here, है ना? Now same will be for second row also. They will be pair of enantiomer. What is the relation between these two compounds? They will be identical since ये R, ये S या ये S, ये R, it will be the same thing. So यहाँ let's say 1, or we can say this is the example of meso compound, and same for this, it will be the example of meso compound. So in general, let's say total it will be 6, and 6 में से 4 will be optically active. लास्ट एग्जाम्पल में लास्ट का आंसर
5 नहीं है। So 4. हाँ 4 है उसका आंसर। So it is the example containing pseudo chiral carbon है ना, जैसा this may be around this we can have Z and E, same around this double bond it may be Z and E. This carbon may be chiral, so around this let's say we can have R and S है, depending कि वो chiral बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें कुछ हम लोग ऐसे पेयर्स बना सकते थे and then we can count also. जैसा this may be one of the combination as ZZ and it may be let's say EE. If it is ZZ and EE, there is no chiral carbon there, there is symmetry. Another combination may be it is ZRZ, sorry ZRE, and it may be ERZ. Similarly, it may be ZSE and it may be ESZ. टोटल ऐसे 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे। ये दोनों डिफरेंट हैं। They will be let's say distereomeric pair, but optically inactive. There is no chiral carbon there. What is the relation between these two? They will be identical, but optically active है ना? Since these two will be pair of enantiomer है ना? So let's say another enantiomer from here, total 4 and 4 में से let's say 2 will be optically active. ई वाले केस में तो मतलब आई एम सेइंग कि यहाँ तो chiral कार्बन है नहीं, तो ये वाला पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट तो सेम हो गया, तो दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है कार्बन के अराउंड, तो वैसे वो chiral हो नहीं सकता। मतलब सर मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा है, तो उसमें लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगा। तो मतलब अगर दो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के एक जैसे से हैं तो उसमें प्लेन ही आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो दो अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके साथ एक प्लेन बना लो, तो एक इधर अंदर जाता हुआ होगा, एक वो ऐसा सेम सब्स्टिट्यूएंट है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कुछ क्वेश्चंस वैसे भी देखो, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। Find out maximum number of monochloro derivative of following compounds. Maximum number of monochloro derivative of following compounds, including stereo. Monochloro derivative of following compound including stereo. And out of them how many will be optically active, and out of them how many will be optically active. So let's say first one, if it is chlorine, let's say this is a 5-membered cyclic ring. Next one, let's say we have this type of compound. Next one, let's say we have this compound.
कंपाउंड्स के मैक्सिमम हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कैन बी पॉसिबल and out of them how many will be optically active. So, इनके साथ हम seven. So, one and so 2 and 6 will be occurring in trans 55. So फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है तुम लोगों को? 5 and 7. 7. So मतलब यहाँ जो फर्स्ट वाले के लिए पॉसिबिलिटीज हैं ये कुछ इस टाइप का. इट मे बी लेट्स से 1,1 डाइक्लोरो. इट मे बी लेट्स से 1,2 डाइक्लोरो. And it may be 1,3 dichloro, है ना? So obviously this will be 1. So in this case, let's say 2 stereo center, but in this case it has symmetry, है ना? So cis isomer will be optically inactive, trans isomer will be optically active. तो इसके लिए 3. Same in this case. Let's say इसके लिए 3, है ना? So सर आई हैव अ डाउट. हाँ बोलो. सर इसमें जो सेकंड कंपाउंड है ना उसमें एक Cl का इनिशियली फिक्स था ना. हाँ तो एक तो Cl बाद को में और एक Cl सर एक Cl का लेट्स से किसी भी एक डायरेक्शन में फिक्स होगा, है ना? अच्छा जो ये दूसरा वाला क्लोरीन है वो उसके सिस पोजीशन पे भी आ सकता था, ट्रांस पे भी आ सकता था, वो तो फ्री है ना? हाँ ठीक है सर. ना तो सिस भी बन जाएगा और ट्रांस भी बन जाएगा उसका. So 3, 3, 1 टोटल 7 and 7 में से how many will be optically active? 4 है ना? 4 will be optically active. इन 3 में से जो 2 पेयर ऑफ एनंशियोमर्स हैं. So, second में 8 है क्या? सेकंड का आंसर 8 and out of 8 टोटल का how many will be optically active? 6 will be optically active. It is type का let's say this is 1 chlorine due to which this carbon become chiral. Similarly let's say due to this chlorine here we have 2 chiral. It may be chlorine here and similar to this let's say it may be chlorine here. So obviously इसके लिए कुछ 1
अनदर वन, इसके लिए सब मिला के 4 और इसके लिए 2. So let's say in general total it will be 8. Out of 8 these 6 will be optically active. Seven. 7. उसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं? 2. So eight. नेक्स्ट एग्जांपल से 7 या 8 उसका आंसर है. Eight और उसमें से 4 optically active. जैसा ऐसे इट मे बी ऐसे क्लोरीन इस पोजीशन पे हो सकता था एज पर स्ट्रक्चर इज कंसर्न. क्लोरीन मे बी प्रेजेंट है ऐसे 2 and these 2 will be optically inactive. Similarly, this may be chlorine here, due to which, let's say, 2 stereogenic center. And let's say ये कुछ क्लोरीन यहाँ, जैसे इसकी वजह से टोटल मिला के एक स्टीरियोजेनिक सेंटर तो बन गया है ना. तो यहाँ से एटलीस्ट सिस एंड ट्रांस तो एग्जिबिट कर सकता था, है ना, साइक्लिक वाले केस में ना. सो टोटल लेट्स से 1, इट इज अनदर 1, ये 4 और यहाँ 2 है ना. एटलीस्ट इट कैन एग्जिबिट सिस एंड ट्रांस. So total, let's say it will be 8, and out of 8, 4 will be optically active. देखो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन जो हम लोग करते होंगे कि आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच वन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, है ना. जैसे बहुत क्वेश्चंस किए होंगे, मतलब जब क्वेश्चंस करने का नंबर आया हो तो लगातार 40-50 एग्जांपल साथ में लिखे होंगे कि अच्छा ये एक्टिव नहीं, ये ऐसा कुछ स्पाइरो कंपाउंड्स एंड देन एलीन प्लेनर नॉन प्लेनर, है ना. सो आउट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स which are found to be optically active. Out of following compounds which are found to be optically active, let's say ये कुछ इस टाइप का, it may be ethyl, methyl and H. Next one, ये कुछ इस टाइप का, let's say it is methyl and ethyl. Next one,
ठीक है, लेट्स से पहले इसमें करो, ये सब में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है वो एक्टिव है इनएक्टिव है? ये इनएक्टिव बन जाता है एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन, है ना, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सब बच्चों ने पढ़ा रहेगा कि इसका पेयर ऑफ इनेंशियोमर इसके साथ में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने वाला है। सेकंड, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता, इन दिस केस ऑब्वियसली अमाइन इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ साइक्लिक अमाइंस। नेक्स्ट वन, फोर्थ, हाँ मतलब इतनी मेहनत करके शायद बनाया है, वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव ये कुछ इस टाइप का, when you see its exact structure, अगर मैंने इसको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाया तो एक रिंग एक दूसरे रिंग के ऊपर कॉन्साइड करने लगेगा, है ना। तो होता क्या है, ये मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का हो जाता है। लेट्स से दिस हाफ कमिंग आउटवर्ड, है ना, प्लेन से बाहर आ जाता, एंड सिमिलरली जो ये वाला हाफ है लेट्स से वो प्लेन के अंदर चला जाता है, ऐसा है ना। अगर हम लोग एग्जैक्ट बनाएंगे तो फिर वो दोनों बेंजीन रिंग कॉन्साइड हो जाएंगे, है ना। तो इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू हेलिक्स बन जाएगा, है ना। एंड ऑब्वियसली सिर्फ यहां ऐसा पेन नहीं आएगा, पूरा सब बेंजीन रिंग में थोड़ा थोड़ा ट्विस्टिंग हो जाएगा, है ना, स्पाइरल टाइप सा, है ना। So it will be active. Next वाला कंपाउंड, जैसे अगर मैं इसको शायद ऐसा, हाँ इसको शायद मैं अगर ऐसा ड्रॉ करता तो मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान होती। H and H टोटल मिला के 8 कार्बन, हम सर इस ट्रांस ऑक्टीन है ना, चाहे 3D में मुझे ऐसा दिखेगा, है ना। तो यहाँ ड्यू टू ट्विस्टिंग इन 3D, है ना, ये और इसका मिरर इमेज will be non superimposable and this compound will be optically active. And obviously इसका जो cis form है it will be optically inactive. ये एग्जाम्पल भी ऐसा तुमने देखा होता है कि लेट्स से वी हैव this compound, this will be optically active. Obviously एक ऐसा 3D में दोनों के दोनों रिंग will be in different plane. लोग एक और क्वेश्चन कर लेंगे अभी, इसमें लिखो असाइन
R and S कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते थे। असाइन R and S configuration for both chiral carbon of given compound. For both chiral carbon of given compound, let's say it will be H here. This is bromine coming outward, and let's say this methyl going inside the surface of board. And similarly, ये कुछ इस टाइप का, this may be, let's say, ethyl. This will be chlorine and H. Obviously, if we have to do IUPAC naming of this compound, we can start, it is C1, C2, C3, C4, C5 है ना। So इसमें दो कायरल कार्बन है, एक C2 पोजीशन पे, एक C3 पोजीशन पे। So you have to just assign R and S configuration to C2 and C3. बोथ आर आर, तो ऐसा हो सकता है। पीछे वाला एस है, Sir, 2 is S and 3 is 2 is S and 3 is R। दो आसान से तरीके, एक तो हम लोग 3D विजुअलाइजेशन भी समझ सकते थे, और वी कैन ड्रॉ इट्स फिशर प्रोजेक्शन आल्सो, है ना। So one thing is, if we concentrate let's say on C2, if we visualize let's say least priority hydrogen away from our side, बाकी 3 let's say it is bromine, bromine के बाद this is bulkier group, this branch, and then board के अंदर methyl है ना, so it is anti clockwise, so confirmly it is S configuration है ना। So if you visualize least priority hydrogen away from your side, and for remaining substituent decreasing priority is anti-clockwise, it is S. So वापस एक्सप्लेन करो ना। बेटा मैं कुछ इस टाइप का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि if you visualize least priority hydrogen away from your side, तो शायद यहाँ नीचे से देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल को, है ना। अब ऐसा गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी देख सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ से विजुअलाइज, लेट्स से मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस मॉलिक्यूल को, तो ब्रोमीन प्लेन से बाहर था, देन में बोर्ड के प्लेन में जाना है, एंड देन प्लेन के अंदर जाना है ना, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स से फॉर दिस इफ यू विजुअलाइज हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम योर साइड, तो शायद मैं हाइड्रोजन के अपोजिट डायरेक्शन से देखने की कोशिश करूंगा, है ना। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लेट्स से इस क्लोरीन का है, एंड देन क्लोरीन के बाद क्या आएगा, मैं ऐसे जाऊंगा तो ये बल्की ग्रुप आ जाएगा, एंड देन इथाइल, सो इट इज क्लॉकवाइज, सो इट विल बी आर लेट्स, है ना। जिन बच्चों को कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन में परेशानी है, वो उसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। To draw its Fisher projection, let's say suppose you can draw first its Newman projection also. If you imagine a disk between let's say C2 and C3 carbon, let's say suppose it is C3 in front and C2 पीछे की साइड है, तो C2 containing hydrogen, it containing methyl and it containing bromine, C3 जो फ्रंट में है, it containing hydrogen, it containing chlorine and it containing ethyl.
So let's say it is C3 carbon in front, C2 carbon will be in back. So to draw its Fisher projection, this staggered form has to convert into eclipse. तो उसको एक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आइदर फ्रंट वाले कार्बन को रोटेट कर सकते थे या बैक साइड वाले कार्बन को. ऐसे फिर रोटेट, कौन सा कार्बन रोटेट करना है? फ्रंट. तो फ्रंट वाले को अगर मैं रोटेट कर दूं लेट्स से सिंपली 60 डिग्री से, सो इट विल बी लेट्स से हाइड्रोजन, इट इज मिथाइल एंड इट इज ब्रोमीन. बैक साइड कार्बन रिमेन एज इट इज. फ्रंट वाला कार्बन का दिस विल बी H here, this will be chlorine and let's say this will be ethyl. So front wala carbon which is C3, back side carbon is C2. We can draw its Fisher projection easily. चे नीचे वाला कार्बन अब क्या है? C3 है या C2 है? This will be C2 हम लोग ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना. और इसको C3 में H ऊपर है बेसिकली, है ना. So it will be let's say H here, it will be ethyl, it will be chlorine. बैक वाले साइड के लिए ब्रोमीन, it is methyl and H. इसे फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ देखना सब बच्चों को शायद आता है. Here least priority hydrogen present on vertical line and decreasing priority for other substituent is anti-clockwise and thus it is S configuration, है ना. ऐसा सब बच्चों ने पढ़ा होता है ना. अगर least priority hydrogen present on vertical line and बाकी 3 substituent के लिए decreasing priority is anti-clockwise, it will be S. Same if you see for C3 carbon, least priority hydrogen present on a vertical line and for remaining 3 substituent decreasing priority is clockwise and thus it will be R. So it is, let's say C2 carbon is S and C3 carbon is R. तो जैसे कंपाउंड्स भी आते हैं कि लेट्स से ये स्ट्रक्चर भी गिवन है, ये स्ट्रक्चर भी गिवन है, ये स्ट्रक्चर भी गिवन है, एंड देन आउट ऑफ देम कौन से आइडेंटिकल हैं, कौन से पेयर ऑफ एनेंशियोमर हैं, कौन से पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स हैं ना. वो तीनों प्रोजेक्शन गिवन हो सकते थे एंड देन उसमें से कुछ पता करना है ना. जैसे आइसोमर वाले पार्ट में किसी बच्चों को कुछ डाउट है तो ये 3 चैप्टर सब बच्चों ने थोड़े अच्छे ढंग से पढ़े होते हैं. 50% ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये जो लेक्चर्स हुए हैं वो इन्हीं 3 चैप्टर के लिए हुए हैं. बाकी 50% में बाकी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपट गया है ना. और मतलब फॉर्चुनेटली इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है पहले जीओसी. जिन बच्चों ने वो 3 चैप्टर झेल जाते हैं वो पूरा ऑर्गेनिक पढ़ पाते हैं. तो जो पहले ही गिव अप कर लेता है वो पूरा ऑर्गेनिक खत्म नहीं कर पाता बच्चा, है ना. ऐसा ही होता है. अच्छा बच्चा मैं फिर से बोल रहा हूँ, योर प्रायोरिटी शुड बी, योर प्रायोरिटी तुम लोग का जो परसों AITS होने वाला है शायद वो नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तुम्हें मार्क्स नहीं आएगा, है ना. तो मतलब यू कैन मैनेज कि लेट्स से AITS 4 मेरा टारगेट है या AITS 5 मेरा टारगेट है, बट उस डेट तक तुम लोग का सिलेबस एक बार जरूर होना चाहिए ना. खुद का पेस का सिलेबस तो हो गया ना, रिवीजन भी हो ही रहा है ना. तो तुम लोग का बुकलेट सबका करके हो जाना चाहिए एक बार. अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट में चैप्टर हुए हैं दे आर चैप्टर ऑफ क्लास 12th आल्सो, है ना, क्लास 12th बोर्ड. तो जो भी फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में लास्ट में चैप्टर हुए हैं इंक्लूडिंग बायोमोलिक्यूल, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, वो चैप्टर तुम्हारे भी करके होने चाहिए, है ना. सिमिलरली ट्रू फॉर फिजिक्स एंड मैथ आल्सो. लास्ट वाले चैप्टर क्लास 12th बोर्ड के भी है ना, तो तुम लोग को अनफॉर्चुनेटली करना ही पड़ेगा. तो
ऑब्वियसली जो कुछ जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स आ रहे थे पेस में, उनका टारगेट जेई एडवांस ही है, तो बहुत टाइम है उनके पास चीजें अच्छी करने के लिए, है ना। तो जिन बच्चों को रिलेटिवली कम मार्क्स आ रहे थे, उनका टारगेट ही पहले जेई मेन है ना, तो उनको भी पूरा सिलेबस तो करना पड़ेगा एटलीस्ट, है ना। पूरा सिलेबस मींस एटलीस्ट क्लास 12th वाला जो सिलेबस है एनसीईआरटी टाइप का, उसके आसान वाले क्वेश्चन तो सारे चैप्टर के करने पड़ेंगे, है ना। कुछ पर्टिकुलर केमिस्ट्री में चैप्टर है इंक्लूडिंग सरफेस केमिस्ट्री, है ना, इंक्लूडिंग बायोमोलिक्यूल, इंक्लूडिंग एक 11th में चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरिफिकेशन, जिसमें क्रोमेटोग्राफी वो सब है। तो एनसीईआरटी ना वो चैप्टर जरूर पढ़ना। एनीवे नेक्स्ट लेक्चर जो अनफॉर्चुनेटली कल ही है ना, हम लोग कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक सीखने की कोशिश करेंगे, मेजर प्रोडक्ट कैसे जल्दी से बना सकते थे या प्रिडिक्ट कर सकते थे, कुछ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का मीनिंग थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, जो भी 2 आवर 2.5 आवर 1.5 आवर में कर पाते हैं ना, तो करेंगे। बाकी तो अल्टीमेटली यू हैव योर क्लास नोट्स, उनको पढ़ो, अच्छे से समझो, रेस्पेक्टिव सेंटर पे जो भी टीचर मिलता है उनसे वो डाउट डिस्कस करो, है ना। बट सब समझना है तुम्हें, नोट्स जो लिखा है तुम लोगों ने, है ना। चलो एंजॉय करो तुम लोग, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोई अच्छा पेन छोड़ के क्यों गया, बट ये अच्छा है, लोग इसमें यूज करते हैं इसको। सर एक डाउट था। सर इसमें एरोमेटिक नहीं है, ये कनेक्टेड है नहीं? हाँ हाँ सर, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। इसने बोलो कि सपोज एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा, है ना। तो या तो ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अदरवाइज फिर ये sp3 कार्बन हो जाए, sp3 नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना। इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं रहेगा। तो अगर मैं दोनों को sp2 एज्यूम करूंगा तो टोटल फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो ये बेटर क्या होगा कि इसमें से कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं बनने का, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। और सर कभी ऐसा सपोज केस हुआ कि अगर 2 नाइट्रोजन मिला के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बना है सपोज, हाँ, तो वो एरोमेटिक होगा ना, क्यों नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सोना के पास से जरूरत है ना, लेने का है, हाँ लेते हैं ना। वो एक्सपेक्टिंग से पीओसी वगैरह तो नहीं रहेगा, बायोमॉलिक्यूल्स तो बायोमॉलिक्यूल्स तो अपन लिखा ही है, बायोमॉलिक्यूल्स से कवर किया हुआ है। चल देख ले, बॉडी में तूने मन भी नहीं किया, चलेगा करने के साथ मजा आएगा। तो बात ही ना, लेकिन 2 ही घंटे हेलो रिकॉर्डिंग बंद करने आएगा क्या कि ऐसे ही 8 घंटा ऐसे कैमरा रोल करते हो या इसको बंद करो।